Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel Shrey's Hub. In this video, I'm gonna tell you the wholesome experience that I had in IIT ISM Dhanbad, and also I'll tell about hackathons and all. So stay tuned with me till the last. I'll explain the whole experience and all. So after reaching Dhanbad, the first day we stayed at a hotel named Tri Hotel, and in the morning onwards we leave the hotel with our luggages and moved into IIT. And this is the entrance gate of IIT. And we girls stayed at Rosaline Hostel, and as you can see, this is the girls hostel, which is Rosaline Hostel. The hostel is literally so big and pretty, and the rooms were literally clean and beautiful. I'll give you the room tour also, but for this you have to stay tuned with me till the last. I heard a concept that whenever any IITian entered into this place, they plant something and take care of that plant, and when they move out from this place, the plant remain there as their identity, which is literally a very cool and beautiful concept. And this is the food court in front of the girls hostel. There is a park too, where many gym equipments were also there and all. The campus is literally so green and beautiful. Let's have a inside tour of this food court, and where you will get all the necessary items like daily use items, from face wash to soaps to deos and all. Every necessary items you will get from here. एंड आफ्टर दैट वी डिसाइडेड टू गिव अ टूर ऑफ द कैंपस, बिकॉज उसके बाद जो हमारे साथ होने वाला था उससे ना ही हम कैंपस टूर दे सकते थे ना ही कुछ, तो वो जानने के लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विथ मी टिल द लास्ट. सो हमने डिसाइड किया टू क्लिक पिक्चर्स इन फ्रंट ऑफ द मेन गेट, बिकॉज इफ़ यू आर इन IIT एंड यू हैवंट क्लिक पिक्चर्स इन फ्रंट ऑफ द मेन गेट, देन व्हाट यू हैव डन यार. And this is very beautiful campus full of greenery and all, and these are the photos. Here I am trying to be aesthetic as usual, and the campus is so big that people usually travel through cycles. They have their own cycles and they go through cycles, and this is very good to keep the campus pollution free and all. And it was lunch time, and इनका मेस अलग रहता है, लाइक हॉस्टल अलग मेस अलग. हमारे कॉलेज में हॉस्टल के अंदर ही मेस है, सो वी हैड टू गो टू द अनदर बिल्डिंग. एंड नीचे वेज नॉन वेज काउंटर था, ऊपर वेज काउंटर था. मेस वॉज लिटरली यूज. Everything there was literally clean and beautiful, and the food that they were serving is literally fabulous for us. It was very nice, but I know if someone is consuming the same food daily, then it's obvious that they will lose the taste, but for us it was good. And this is the mess view, as you can see. तो जब तक हम खाना खाते हैं तब तक मैं आपको हैकाथॉन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमने कैसे पार्टिसिपेट किया. सो बिफोर दिस ऑफलाइन हैकाथॉन वी हैड ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन मैनी ऑनलाइन हैकाथॉन्स, बट दिस वाज आवर फर्स्ट ऑफलाइन हैकाथॉन. सो देयर वाज अ लिंक दैट केम इनटू आवर व्हाट्सएप ग्रुप अबाउट हैकफेस्ट दैट IIT ISM conduct every year. This is almost 10 years older. So without any chance we directly applied for it because हमारा idea already ready था. So luckily we got selected, our idea was shortlisted. Something like almost 1000 कितने teams ने apply किया था, but we were among the top 70 teams, so we got this golden opportunity. So how can we just miss this opportunity? So without any chance we just like चलो यार चलते हैं, हम इसको lose नहीं कर सकते. So शाम को हमारा orientation program था, like on 6 PM onwards. This is the heritage building, which is the most iconic building of ISM. This is almost 100 years older, if I'm not wrong. Like इसका architecture बहुत पुराना है, like British architecture से मिलता जुलता है, and it was built on 1956. I don't remember properly, but उतना ही हो सकता है. The place is literally so pretty. And our orientation program was conducted in Panman Auditorium. Yeah, Panman, I guess. Yeah. So everything was nice, but there वहाँ पे जो हुआ ना, फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टार्टेड द ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स 2 hours डिले. लाइक हमें बुलाया गया था 6 बजे, बट सब कुछ स्टार्ट होते होते 8 बज गया था, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग था हमारे लिए, बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्ड थे. कैंपस घूम लिया, सब कुछ कर लिया, तो इसलिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ. हमें आइडेंटिटी कार्ड्स दिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए. फिर जो बॉम्ब फूटा हमारे ऊपर, बिकॉज वी वर टोटली अनअवेयर ऑफ दिस कि कंटिन्यूस 36 hours का हैकाथॉन होने वाला था.
एंड हमें मैन आवर्स प्रोवाइड कर दिए गए थे, लाइक 7 आवर्स, 36 आवर्स में से 7 घंटे दिया जाता है पर पर्सन. एंड इफ़ यू लाइक एक्सटेंड दिस टाइम लिमिट देन ऑब्वियसली पॉइंट्स विल बी डिडक्टेड. सो वी डिडंट वांटेड टू डिडक्ट आवर पॉइंट्स एंड ऑल. तो बहुत ही हेक्टिक गया हमारे लिए, बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस आई विल से. बहुत मज़े भी किए हमने. तो हमने जल्दी से आके खाना पीना खाया एंड हम फिर से 12 बजे मतलब 11:30 तरफ हम निकल गए, बिकॉज 12 बजे से स्टार्ट होने वाला था हमारा हैकाथॉन. आप हमारे चेहरे से ही देख सकते हो हम कितना फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है, बट उस टाइम पे कुछ कर नहीं सकते थे. तो हमने गूगल मैप निकाला और गूगल मैप की हेल्प से हम डायरेक्टली पहुंच गए सेंट्रल लाइब्रेरी, जहाँ पे सब कुछ कंडक्ट करवाया जा रहा था. It was really hectic for us because not everyone of us is a night owl. Like मैं रात के 3 बजे तक मैक्स टू मैक्स जग सकती हूँ, उसके बाद मेरे से भी नहीं होता है. एंड सेंट्रल लाइब्रेरी में सब कंडक्ट करवा रहे थे एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम ही डिसाइड कर रहे थे लाइक क्या करना है क्या नहीं इसके बाद. एंड आफ्टर दैट हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ा. एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन आवर वर्क प्लेस वॉज अलॉटेड टू अस एंड आवर टीम नेम इज़ एम्बू ट्रैकर्स एंड दिस वॉज द प्लेस दैट वॉज अलॉटेड टू अस. बहुत अच्छा जगह मिला था बिकॉज इसके बाद हमें सोना ही था, बिकॉज हम इतने ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, हम वहीं पे सोना पड़ा. एंड आप देख सकते हो यहाँ पे सभी लोग कैसे बैठे हुए, मेरे फेस से ही पता चल रहा है कितनी ज़्यादा परेशान थी, लाइक बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था हमारे लिए. एंड पीपल वेर ऑल्सो स्लीपिंग लाइक दिस. And in the morning 4 AM onwards they started giving our refreshment. So उसके लिए भी हमें लाइन में लगना पड़ा. एंड यार ऑब्वियसली वी वर सो टायर्ड, हमें नींद भी बहुत आई हुई थी, बट क्या कर सकते हैं, जगना तो पड़ेगा. एंड इन रिफ्रेशमेंट दे गिव अस लाइक फ्रूटी, भुजिया, बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स. एंड in the morning onwards we decided to take a break and we moved to our hostel. Since it was our first day, so हम बार बार भूल जा रहे थे रास्ता किधर है क्या है. एंड at this point of time we were so tired that हम सोच रहे थे कि अगर जितना जल्दी प्रोजेक्ट ख़त्म हो सकता है हम ख़त्म करके हम बस हमको जाना है एंड रेस्ट लेना है. बट रूल इज़ रूल, यू हैव टू स्टे देयर अप टू 36 hours and in between if you go outside then it will count as a man hour. But we didn't want to like lose our points, so हमको वहीं पे ही रहना पड़ा. And the library was almost like 1 kilometer or half kilometer away from our hostel, so we had to walk almost 1 kilometer every time we decided to go to our hostel and all. So it was literally a hectic time. As you can see through my face, I was hell tired at that time. And this is the room that was allotted to us, and this is the wardrobe. A mirror was there and the room was pretty much good, like huge and clean though. And the chair tables were also provided to us. And the best part of this room is, guess what, the view is literally breathtaking. And we were on the 6th floor, so हमने जितना सोचा था गर्मी होगी उतनी गर्मी नहीं थी. weather was cool and all. and फिर हम लंच के लिए नीचे उतरे और फिर से हमने रास्ता भूल गए थे. तो वी एंटर्ड इनटू दिस प्लेस. द प्लेस लाइक मुझे चाइना का मॉन्स्टर बिल्डिंग की याद दिला रही थी. दिस प्लेस वाज लिटरली सो कूल. एंड सैटरडे, दिस वाज सैटरडे, सो हमें खिचड़ी दिया गया था. खिचड़ी भी बहुत सही था लाइक. एंड उसके साथ वाटरमेलन, छाछ, दही एंड ऑल. सो द फूड वाज wholesome food it is, I will say. And after that day like हमारा प्रोजेक्ट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था. वे वर सो लाइक कि अभी यूजलेस बैठे हुए हैं, हमको जाने दो. बट रूल इज़ रूल भाई, तुमको रहना पड़ेगा. सो हम ऐसे सेटअप करके हम वो सो ही गए थे. ऑलमोस्ट 2-3 चेयर को ऐसे साइड में लगा के, लोग भी साइड वाले टीम भी वैसे ही करके सो गए थे. एंड क्या कर सकते यार, बहुत हेक्टिक हो रहा था सब चीज़ें इसीलिए. एंड रात तक तो हमें वैसे ही रुकना पड़ा. मैन आवर्स भी हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था. सो हमको टाइम के लिए अंदर ही हमको सब काम करना पड़ा. बट हमारी एक टीममेट का तबीयत इतना ख़राब हो गया था कि उसको इन बिटवीन दैट टाइम उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा. सो फॉर दैट स्पेशल केस सी गॉट दैट परमिशन टू स्टे इन द हॉस्टल. बट हमको परमिशन नहीं मिला. सो अनफॉर्चुनेटली हमें उस दिन भी कैसे करके वैसे सो के कटाना पड़ा, 2-3 चेयर मिला के. अब
जुगाड़ू इंसान है भाई, हमको कैसे भी करके चल जाता है। एंड सुबह भी हम इतने लेट हो गए थे कि हम ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए, हमारा टाइम आवर भी मतलब मैन आवर भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को था। तो नीचे फूड कोर्ट्स थे, हमने शेक पी लिया एंड उसी दिन शाम को क्लोजिंग सेरेमनी था। सो वी वेर ऑल सेट टू गो। दिस इज़ द टाइम हमारा हाथ पाँव ठंडा हो रहा था कि क्या होगा क्या नहीं। दिस वॉज द क्लोजिंग सेरेमनी एंड दैट वॉज लाइक हम ऑल दो नहीं जीते बट इट वॉज लिटरली अ होलसम एक्सपीरियंस, अ टोटली न्यू एक्सपीरियंस। जीतना हारना जीतना तो बात की बात है, मेन चीज़ होता है आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो मोमेंट्स आपके लिए हमेशा के लिए रह जाते हैं। सो आफ्टर द क्लोजिंग सेरेमनी वी डिसाइडेड टू गिव अ टूर ऑफ दैट प्लेस बिकॉज ऑब्वियसली लास्ट दिन था, हम कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहते थे। सो वी डिसाइडेड टू गिव अ क्लोजर टूर ऑफ दिस हेरिटेज बिल्डिंग, जो कि इतना सुंदर बिल्डिंग है, ऑब्वियसली कौन ही छोड़ेगा यार। इसीलिए हम आके इसका पूरा टूर दिए एंड अगेन हम गर्ल्स लाइक वी हम फिर से रास्ता भूल गए। ये तो होना ही था यार, इतना बड़ा कैंपस है हम और रात को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, हम फिर से रास्ता भूल गए। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम सभी लोग बहुत टेंशन थे, गूगल बाबा भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और मुझे तो गलत टाइम पे ही हंसी आ जाती है। मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि अब करे तो करे क्या। एंड फाइनली हम हेल्थ सेंटर तक पहुंच गए थे। तो वहाँ पे अंकल इतने स्वीट थे कि उन्होंने हमें एम्बुलेंस में हॉस्टल छोड़ा। ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था गाइस। एंड दूसरे ही दिन सुबह 5:30 बजे मेरा ट्रेन था। मैं तो टाइम पे पहुंच गई थी बट मेरा दोस्त तो बहुत लेट हो गया था, जिसकी वजह से हम ट्रेन छूटते छूटते बच जाए। यार छोड़ के तो जाने का मन नहीं कर रहा था बिकॉज़ बहुत अच्छी जगह है नो डाउट एंड बट सभी मोमेंट का एक एंडिंग तो आता ही है। तो अकेला ट्रिप लाइक दोस्तों के साथ ट्रिप था मेरा, फर्स्ट ट्रिप विदाउट पेरेंट्स एंड ऑल। इट वाज सो गुड, आई कांट टेल यू, बहुत अच्छा था। IIT ISM मिस तो बहुत करूँगी यार तुमको, बहुत अच्छी यादें लेके जा रही हूँ ऑब्वियसली, बहुत अच्छी यादें हैं जो कि मैं लाइफ टाइम कैरी करूँगी। ऑल्दो इट वाज हेक्टिक बट इट गिव मी अ होलसम एक्सपीरियंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट।